As you know, now we are starting the organic chemistry. So today I'm going to start the IUPAC nomenclature of organic compounds, and it is very important topic. Okay, so let's start. IUPAC naming. The full form of IUPAC is International Union of Pure and Applied Chemistry. It decided the rule for naming of organic compounds or inorganic compounds. So parts of IUPAC nomenclature is, first thing is root word. Second is prefix. Prefix are of two types, primary and secondary, and suffix. Suffix are also primary and secondary. So what are the secondary suffix? Substituents in written in alphabetical order like chloro, nitro. These are the secondary prefix. What are the primary prefix? Suppose compound is cyclic compound, so we can write the cyclo. It is a primary prefix. Root word, it is the number of carbon chain. Represent the total number of carbon in principal carbon chain. Like if the carbon chain has one carbon, it is called meth. Two carbon, it is called eth. Suppose there is three carbon, so it is called prop. At least 4 carbon bute, 5 carbon pent, 6 carbon hex, and so on. Like 10 carbon, it is called dec. Primary suffix tells about whether compound is saturated or unsaturated. Like compound is saturated, there is n is the primary suffix. Suppose compound is unsaturated, like multiple bond, double bond is present, that is ene we will use. And suppose there are three bonds between the carbon, so then we can use ine. And similarly diene and ine. Okay, if there a double bond and triple bond is present. And the last, secondary suffix. Secondary suffix tells about the principal functional group, like COOH is the carboxylic group, CHO is the aldehyde, OH is the alcohol, NH2 is the amine. So it tells about the functional group. Okay, so now the next one is प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, कि हमको किस प्रायोरिटी में फंक्शनल ग्रुप को नेमिंग करनी है. सपोज इसमें फर्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप रहेगा प्रायोरिटी में, दैट इज द COOH कार्बोक्सिलिक एसिड. उसके बाद में SO3H सल्फोनिक एसिड. उसके बाद एनहाइड्राइड है. उसके बाद में ईस्टर है. उसके बाद में एसिड हेलाइड, देन एमाइड, देन साइनाइड, देन आइसोसाइनाइड, देन एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, अमीन. दिस आर द दिस इज द प्रायोरिटी फॉर द फंक्शनल ग्रुप. अगर सपोज इसमें से कोई भी दो ग्रुप प्रेजेंट होंगे किसी भी चेन में, सपोज COOH और SO3H, तो COOH जो नंबर 1 पे आ रहा है वो प्रायोरिटी में रहेगा, उसका हम सफिक्स यूज़ करेंगे ओइक एसिड. और अब जो SO3H रहेगा उसका हम यूज़ करेंगे यहाँ पर सल्फोनिक एसिड. सफिक्स है तो यहाँ पर वो प्रीफिक्स हो जाएगा, क्योंकि इससे भी प्रीफर फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है COOH, सो ये हो जाएगा सल्फो. ऐसे ही हम देखेंगे, अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि एल्डिहाइड है. एल्डिहाइड में अगर प्रीफिक्स एज ए सब्स्टिट्यूशन एल्डिहाइड प्रेजेंट रहेगा तो ऑक्सो यूज़ करेंगे, और सफिक्स यानी कि एज ए फंक्शनल ग्रुप रहेगा तो अल यूज़ करेंगे. और ऐसे ही एल्डिहाइड में हम फॉर्मिल और कार्ब एल्डिहाइड यूज़ करते हैं. कीटोन में ऑक्सो या कीटो या फिर ओन यूज़ करते हैं. आपका अल्कोहल जो है OH, उसमें अगर वो प्रीफिक्स है तो हाइड्रोक्सी और उसका सफिक्स ओल यूज़ होगा अगर वो फंक्शनल ग्रुप है तो. ओके, ऐसे ही हम चेक करते हैं कुछ सब्सटीट्यूएंट्स हैं, जैसे R एल्काइल चेन है तो हम एल्काइल यूज़ करते हैं. X है तो हेलो यूज़ करते हैं. NH2 तो नेमिंग में एमिनो. नाइट्रो NO2 तो नाइट्रो यूज़ करते हैं. ONO है तो नाइट्राइड यूज़ करते हैं. NO है तो नाइट्रोसो यूज़ करते हैं. इस तरह से डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट्स ग्रुप्स हैं और उनका नेम उनके अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है. ओके, जैसे यहाँ पर OR है तो हम एल्कोक्सी यूज़ करते हैं. तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे कुछ जो सेलेक्टिव नियम हैं या जो रूल्स हैं जिसके अकॉर्डिंग हम IUPAC नोमेनक्लेचर करते हैं. फर्स्ट रूल इज द सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन. यू हैव टू चूज द लॉन्गेस्ट प्रिंसिपल कार्बन चेन, देन यू हैव टू डू द नंबरिंग ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन. द PCC का मतलब है यहाँ पर प्रिंसिपल कार्बन चेन. तो सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन हमें कैसे करना है? PCC will be that longest continuous chain of carbon which have functional group, preferred functional group, maximum number of multiple bonds, maximum number of carbon atom. जैसे हम यहाँ पर चेक करते हैं 3 एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 कार्बन से एक कार्बन यहाँ पर नीचे भी है. एक हम यहाँ पर देखेंगे 1, 2, 3, 4, ये सेम कंपाउंड से तीनों, पर हम किसे चूज़ करना है और किसे नहीं, ये हमें देखना है. इस वाले में हमने कार्बन चेन में 4 कार्बन चूज़ किया, लेकिन हमने फंक्शनल ग्रुप को क्या कर दिया, यहाँ पर छोड़ दिया. इस वाले में हमने क्या किया, 3 कार्बन ही चूज़ किए. इस वाले में हमने 4 कार्बन चूज़ किए जिसमें फंक्शनल ग्रुप भी ऐड हो गया. सो दिस इज़ द राइट मेथड टू चूज़ द कार्बन चेन. तो ये हो जाएगा आपका मिथाइल साइड में हो गया तो 2, यानी कि ये ब्यूटेनोइक एसिड हो जाएगा. ऐसे ही हम आगे चलते हैं. हम यहाँ देखते हैं
4 कार्बन है, बट ये OH हमने चूज़ नहीं किया। यहाँ पर हमने देखा 1 2 3 और 4 कार्बन भी हो गए, मैक्सिमम 4 कार्बन ही हो रहे हैं चेन में, और साथ में OH ग्रुप भी ऐड हो गया। तो यहाँ पर ये जो नेमिंग है, ये जो नंबरिंग होगी या जो साइड चेन जो होगी, बिल्कुल सही होगी। ऐसे ही आप दूसरे एग्जांपल्स भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ये वाला है, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए, मैक्सिमम 6 कार्बन, और एक क्या आ गया, ये वाला डबल बॉन्ड आ गया। तो ये इस तरह से इसकी साइड चेन हम चूज़ कर लेंगे। ओके, अब हम आगे चलते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो है इसके अंदर क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसके अंदर कार्बन है, 2 मल्टीपल बॉन्ड्स हैं और 2 डबल बॉन्ड्स है जिसमें से। ओके, तो इस तरह से हमें चूज़ करना है जिसमें मैक्सिमम नंबर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए, उसी चेन को हमें चूज़ करना है। जैसे यहाँ पर देखिए, इस ऑप्शन के अंदर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ये भी चेन हो सकती थी। ओके, 1 2 3 4 5 6 ये भी चेन हो सकती है, 6 कार्बन। बट हमें देखना है कि सब्सटीट्यूशन ग्रुप किस में ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये अगर इस कार्बन को चेन को चूज़ करते तो एक ग्रुप होता सब्सटीट्यूशन, हमने इस कार्बन चेन को चूज़ किया तो यहाँ पर हमें एक सब्स्टिट्यूशन ये मिला, एक ये मिला 2, ठीक है, एक ये मिला 3, एक ये मिला 4। तो ये मैक्सिमम है, मतलब इसी केस में 4 सब्स्टिट्यूशन ग्रुप हो रहे हैं। अदरवाइज आप ये वाली चेन चूज़ करते तो 1 और 2 सब्स्टिट्यूशन ही होते। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन उधर से चूज़ करनी है जिस साइड से सब्स्टिट्यूशन ग्रुप भी मैक्सिमम हो। अब नंबरिंग ऑफ PCC पे हम आ जाते हैं। Lowest number will given to functional group, then multiple bond, then the SB। तो हम यहाँ पर देखते हैं सब्स्टिट्यूशन, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं ये आपकी कार्बन चेन है, इस कार्बन चेन को हम थोड़ा सा जूम करके यहाँ देखेंगे तो इसमें हमको नंबरिंग करने के 2 ऑप्शन हैं। फर्स्ट हम ऑप्शन कर सकते हैं इस कार्बन को नंबर 1 दे, 1 2 3 और 4। दूसरा केस होता है इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 गिवन दें, इसे हम इसको नंबरिंग करेंगे। तो हमें देखना है कि OH ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच है उसको लीस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इस डायरेक्शन में जब हम नंबरिंग किया तो इस कार्बन को मिलता है 3, और इधर से नंबरिंग किया जब इसको मिलता है 2, तो ऑब्वियसली हमें इस साइड से नंबरिंग करनी है। यहाँ पर जैसे इसको ओल को यानी कि OH को लीस्ट नंबर मिलता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड से कितना मिल रहा है, 3, RH से 2 मिल रहा है, तो RHS वाली बिल्कुल राइट होगी। इसी तरह हम यहाँ देखते हैं, इधर LHS में आते हैं तो डबल बॉन्ड, यहाँ पर कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को 3 नंबर मिल रहा है और RHS में 1 मिल रहा है, तो हम नंबरिंग इधर से करेंगे, इसको RHS की साइड से करेंगे। ऐसे ही ये सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है, इसको इस साइड से 3 मिल रहा है और RHS से 2 मिल रहा है, तो हम RHS से ही नंबरिंग करेंगे। अब आगे हम देखते हैं, यहाँ पर फंक्शन ग्रुप को 2 मिल रहा है, किस साइड से, यहाँ से, और RHS से मिलेगा 5, तो हम फंक्शन ग्रुप को जहाँ से 2 नंबर लिस्ट नंबर मिल रहा है उधर से नंबरिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए फंक्शन ग्रुप 3 और 3 मिल रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं, लेकिन जो मल्टीपल बॉन्ड है उसको इस साइड से 4 मिलेगा और इस साइड से 1 मिलेगा, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे जहाँ से डबल बॉन्ड को 1 मिलेगा। ओके, इधर से हम देखते हैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन है क्लोरो, तो फंक्शन ग्रुप आप देखेंगे यहाँ से इधर मिल रहा है 3 और इस साइड से मिल रहा है 4, तो जहाँ से इसको लीस्ट नंबर मिलेगा उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे। ऐसे ही आप सब में ही 1 बाय 1 एग्जांपल देख सकते हैं। नंबरिंग हमें उसी साइड से करनी है जिधर से फंक्शन ग्रुप को और सब्स्टिट्यूशन को लीस्ट नंबर मिले। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे ये वाला एग्जांपल से, तो हम देखेंगे इसको कि किस तरह से इसका नेमिंग करना है हमको। यहाँ पर हम देखें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करनी है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, और 2 पे लगा हुआ मिथाइल, इसलिए इसका नेम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर 2 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो है। ओके, इसलिए अगर इस साइड से करते तो 3 पे ब्रोमो आता और 4 पे क्लोरो आता, जो कि गलत हो जाता, इसलिए 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। यहाँ पर आप देखेंगे B अल्फ़ाबेट में पहले आता है और C बाद में आता है, इसलिए ब्रोमो को पहले लिखा गया और क्लोरो को बाद में लिखा गया, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ऐसे ही हम आगे चलते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ये वाला एग्जाम्पल है। यहाँ पर नंबरिंग देखो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो रहा है, जबकि यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो रहे हैं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मैक्सिमम इसी में है। आप देखोगे 3 4 पे डाई इथाइल है, ये 3 पे और ये 4 पे, तो ये एक इथाइल हो गया और ये इथाइल हो गया, ठीक है, सॉरी ये एक इथाइल हो गया और ये एक इथाइल हो गया। तो 3 4 पर डाई इथाइल है, 2 5 पर डाई मिथाइल है, यहाँ पर 2 पे ये मिथाइल हो गया, इधर 5 पे मिथाइल हो गया, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन हो गया।
इस तरह से हमें ये ध्यान रखते हुए ही नंबरिंग करनी है और ऐसे ही इसका नेम लिखना है। IUPAC नेमिंग फॉर साइक्लिक कंपाउंड्स, ये हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। साइक्लिक कंपाउंड्स में क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम में लॉन्गेस्ट चेन है, उसके बाद में रिंग ओपन और एंड क्लोज चेन हैव नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, देखिए इस तरह से यहाँ पर ये OH लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप, तो हमें इसको लेना है। यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ तो इसको लेना है, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ गया तो इसको लेना है, जैसे यहाँ पर OH आ गया तो इसको प्रेफरेंस में रखना है। नंबर 2, इसका जो रूल है that is if carbon containing functional group is directly attached to the ring then it is considered a part of the ring but its carbon is not included in parent carbon chain, यानी कि PCC में ऐड नहीं होगी। जैसे यहाँ पर यह है, देखिए ये C ऊपर है, पेरेंट कार्बन चेन में नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोहेक्सेन पे कौन कनेक्टेड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही ये साइक्लोहेक्सीन है और ये कार्बोनाइट्राइल हो जाएगा। बाकी नंबरिंग एज यूजुअल करनी है आपको। जैसे हम इसका नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे हम 4 पे ये 2 कार्बन ऐसे और ऐसे, ये 1 कार्बन हो जाएगा और ये 2 कार्बन CH2 CH3। तो इस तरह से इथाइल लगा हुआ है, इथाइल लगा और 1 पे देखो ये जो एरो है या जो लाइन है, इसका मतलब होता है कि यहाँ पर CH3 अटैच्ड है। तो मिथाइल कितने हो गए, 2 मिथाइल हो गए, तो 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। यहाँ पर 4 पे इथाइल है, 1 2 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। इस तरह यहाँ हम देखेंगे तो 4 पे अमीनो है, 3 पे क्लोरो है और साइक्लोहेक्सेनोल यानी कि अल्कोहल हो जाएगा। इस तरह से हम इन सब का नाम करेंगे, ठीक है। IUPAC नेम फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स हम देखते हैं। ये जो बेंजीन है इसका फॉर्मूला होता है C6H6। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम हमें ध्यान रखने हैं। बेंजीन के अंदर क्या होता है, बेंजीन के अंदर एक 6 कार्बन की साइकिल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशंस पे होते हैं। इसी तरह बेंजीन पे अगर CH3 है तो टोलुइन है, बेंजीन पे OH है तो फिनोल है, बेंजीन पे NH2 है तो वो एनिलीन बोलते हैं। यहाँ पर बेंजीन पे COOH है दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। अगर CHO है तो बेंजेल्डिहाइड है, क्योंकि ये ग्रुप एल्डिहाइड होता है, ये ग्रुप साइनो होता है जिसको बेंजो नाइट्राइल कहते हैं। यहाँ पर इसको OCH3 है अटैच तो एनिसोल कहते हैं। यहाँ पर OH फिनोल, उस पर COOH सैलिसिलिक एसिड कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर CHO तो सैलिसिल एल्डिहाइड कहते हैं, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। इसी तरह यहाँ पर दोनों पे CH3 अटैच है तो उसको ऑर्थोजाइलिन कहते हैं। अगर यहाँ आ जाता है तो मेटाजाइलिन कहते हैं और सामने आ जाता है तो पेराजाइलिन कह लेते हैं। इसी तरह हम देखेंगे एक एग्जाम्पल यहाँ पर कि ये बेंजीन रिंग पे 1 3 और 5 पे मिथाइल अटैच है तो 1 3 5 ट्राई मिथाइल बेंजीन और मेसिटिलीन इसको बोलते हैं। तो मेसिटिलीन का एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं इधर इधर और इधर। तो स्टूडेंट्स ये हमने IUPAC नोमेनक्लेचर थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा और इसको हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर सबको ध्यान देना है, समझना है और इसको बहुत प्रैक्टिस करके सीखना है। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।